Hello, welcome back once again in basic electronics subject. So in our last lecture we have started the chapter number 4, unit number 4 of this subject, that is field effect transistor. And in the last lecture we have seen what is FET, what are the types of FET, how FET is classified. So we have seen the FET main classification is of two types, junction field effect transistor and metal oxide field effect transistor. Under JFET, there are two category of classification: N channel JFET and P channel JFET. And in our last lecture, we have started the type of JFET, that is N channel JFET. We have seen what is the construction and working of this N channel JFET. And in the end, also, we have completed the last lecture with the construction of P channel JFET also. With the construction of P channel JFET, also we have seen the symbol of both N channel and P channel JFET. So only the difference in P channel JFET is that in case of P channel JFET, the main substrate is of N type P type. The main substrate is of P type semiconductor, and on the both side of this P channel substrate, there is two N type semiconductors joined or diffuse, you can say. So in this way, it is also forming two PN junction. PN junction like we have seen in N channel JFET also. So here only the main thing is that the main body is of P-type semiconductor, and along this body there are two N-type semiconductors are joined or placed. So in this way it is also forming two PN junction. And like similarly we have seen the input junction of this JFET is always reverse bias, means the gate to source voltage must be reverse bias. So in order to do the reverse biasing, this N-type semiconductor is connected to positive terminal of the battery, and this negative terminal of the battery is connected to source terminals. In this way, this gate to source voltage is reverse bias. And we have seen this drain potential is drain terminal must always be at higher potential as compared to source. So that's why drain potential is kept at higher level as compared to source. So drain terminal is connected to positive terminal of the battery, and source terminal is connected to negative terminal of the battery. So the working is same as like you have seen in N channel JFET. As you go on increasing the gate to source voltage, reverse supply voltage, this depletion layer is going to be increased, and a time will come this depletion layer will both touch each other, and it will further flow of drain current will stop. So drain current will remain constant at that value only. आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा. किसी को कुछ डाउट तक है यहाँ तक एन चैनल और पी चैनल की वर्किंग तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है. टुडे वी आर गोइंग टू सी द कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड विद जेफेट. तो जिस तरीके से हम लोग ने बीजेटी में कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व किए थे, अगर फॉर एग्जांपल हम कॉमन इमीटर एम्पलीफायर की बात करते हैं, तो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में हम लोग ने भी उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व किया था. एक था इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और एक था आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक. तो उसी तरीके से एफईटी में भी दो तरीके की कैरेक्टरिस्टिक होती है. नो यहाँ पे अब इसको इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोलते, यहाँ पे पर्टिकुलरली उसका नाम मेंशन करके बोला जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आउटपुट में ड्रेन टर्मिनल है, तो यहाँ पे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को नाम दिया गया है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेफेट. ठीक है. जिस तरीके से आपने सीई एम्पलीफायर में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का नाम दिया था, इसी तरीके से जेफेट में जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है उसको पर्टिकुलरली उसके नाम से बोला जाता है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, बिकॉज आउटपुट टर्मिनल इज व्हाट ड्रेन ओनली. यहाँ पे आपका जेफेट में जो मेन आउटपुट टर्मिनल जो माना जाता है वो क्या माना जाता है? ड्रेन टर्मिनल माना जाता है. तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे जो प्लॉट होगी उसका नाम जो है यहाँ पे क्या दिया गया है? ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक. और उसी तरीके से जिस तरीके से आपने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का नाम दिया था बीजेटी में, उसी तरीके से यहाँ पे जेफेट में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का नाम दिया गया गेट कैरेक्टरिस्टिक. तो हियर आल्सो यू आर गोइंग टू सी द टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक. The gate characteristic can be, you can also say it as input characteristic of JFET, और drain characteristic को आप बोल सकते हो output characteristic of JFET. तो यहाँ पे भी आपको दो कैरेक्टरिस्टिक नजर आएगी, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक और गेट कैरेक्टरिस्टिक. सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेफेट को. अब ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेफेट क्या है? जैसे कि मैं आपको बताया कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट क्या होगा? तो जेफेट में जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है? ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज. ये ड्रेन है, ये सोर्स है,
तो जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है दैट इज नथिंग बट योर ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इज नथिंग बट योर आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे आपका जो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक जो प्लॉट हुआ है इट इज प्लॉटेड बिटवीन आउटपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट। तो आउटपुट वोल्टेज आपका क्या है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, और आउटपुट करंट आपका क्या है, ड्रेन करंट। ठीक है, सो इट इज द प्लॉट विच इज प्लॉटेड बिटवीन आउटपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट। तो आउटपुट वोल्टेज इज ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज एंड आउटपुट करंट इज ड्रेन करंट। अब यहाँ पे हम लोग को ये अंडरस्टैंड करना है कि ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल कौन कर रहा है, विच इज द कंट्रोलिंग एलिमेंट। जो आउटपुट के करंट को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो आपको यहाँ पे खास बात नजर आ रही होगी। तो विच इज द कंट्रोलिंग एलिमेंट वो ईयर, यहाँ पे जो आपका कंट्रोलिंग एलिमेंट है वो क्या है, आपका VGS, गेट टू सोर्स वोल्टेज। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करने वाला एलिमेंट कौन सा था, इनपुट का बेस करंट। लेकिन अब यहाँ पे इनपुट का बेस करंट नहीं है, यहाँ पे इनपुट का करंट नहीं है, यहाँ पे इनपुट का क्या है, वोल्टेज है। तो इसलिए जेफेट को क्या बोला जाता है, पिल कंट्रोल डिवाइस, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो क्लियर कट आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में भी नजर आ रहा होगा कि ये जो पर्टिकुलर आउटपुट का जो करंट है वो किसके अकॉर्डिंगली कंट्रोल हो रहा है, वो कंट्रोल हो रहा है आपके कंट्रोलिंग एलिमेंट इनपुट गेट टू सोर्स वोल्टेज। तो अकॉर्डिंग टू द इनपुट गेट टू सोर्स वोल्टेज योर आउटपुट करंट विल हैव डिफर वैल्यू। तो ये बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक आपको सिमिलर वैसे ही ऑब्जर्व हो रही जैसे आपने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में देखा था, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस है, कुछ ऑब्जर्व है, वो आपको क्लियर करना है। अब कैसे आप क्लियर करोगे, कैसे अंडरस्टैंड करोगे, जैसा कि मैंने वर्किंग में आपको बताया था कि अगर ये रिवर्स सप्लाई वोल्टेज VGS अगर आप जीरो रखते हो, कुछ वैल्यू नहीं देते हो, कुछ अप्लाई नहीं करते हो, तो उस टाइम पे ये पर्टिकुलर डिप्लेशन लेयर की विड्थ सबसे कम होगी। जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है, ये जो पीएन जंक्शन है फॉर्म हो रहा है दोनों बाजू में, इट इज ऑल्सो फॉर्मिंग पीएन जंक्शन, इट इज ऑल्सो फॉर्मिंग पीएन जंक्शन। तो ये जो पीएन जंक्शन जो फॉर्म हो रहा है उसकी डिप्लेशन लेयर की विड्थ सबसे कम कौन से केस में होगी, जब ये गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, 0 वोल्ट होगी। तो जब गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू 0 होगी तो सबसे कम डिप्लेशन लेयर की विड्थ होगी। तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा चैनल की विड्थ है, ये जो पी चैनल है उसकी विड्थ सबसे ज्यादा है। तो उस तरीके से मतलब सबसे ज्यादा मैक्सिमम ड्रेन करंट फ्लो हो रहा है आपका। तो ये जो ड्रेन करंट आपका ड्रेन टर्मिनल से सोर्स टर्मिनल के बीच में फ्लो हो रहा है ड्यू टू दिस पॉजिटिव पोलैरिटी एंड नेगेटिव पोलैरिटी ऑफ द बैटरी। तो ये बैटरी के कनेक्शन की वजह से आपका ड्रेन टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे है, सोर्स टर्मिनल आपका लोअर पोटेंशियल पे है। तो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ ड्रेन करंट आपका फ्लो होगा कब, जब आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 पे होगा। क्यों, क्योंकि गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 है तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ सबसे कम है, इसका मतलब चैनल की विड्थ सबसे ज्यादा है, चैनल की विड्थ सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब सबसे ज्यादा करंट फ्लो होगा। सो दैट्स व्हाई इफ यू विल ऑब्जर्विंग इन दिस ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, आप जब ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक में ऑब्जर्व कर रहे हो तो जब आपका VGS 0 वोल्ट पे है तो VGS 0 वोल्ट होने पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम ड्रेन करंट फ्लो होता है। तो ये इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो ये ड्रेन करंट आपका इंक्रीज होते जा रहा है, जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, VGS की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो वैसे वैसे ड्रेन करंट की वैल्यू भी क्या होगी, थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होना चालू होगी। तो अभी आपका क्या हो रहा है, ड्रेन करंट की वैल्यू सबसे ज्यादा कौन से केस में, VGS इक्वल टू 0 वोल्ट पे। फिर VGS की वैल्यू आप जैसे जैसे इंक्रीज करोगे, अगर आप 0 से उसको ज्यादा इंक्रीज किए, 0 -0.5 किया है, रिवर्स सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज किए, तो रिवर्स सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज करने से क्या होगा, रिवर्स सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज करने से, हाँ किसी को कुछ डाउट है क्या, जरा पूछ सकता है, हैंड रेस किया है किसी ने। सर मैं पूछ रहा था VGS 0 होगा तो ड्रेन करंट सबसे ज्यादा फ्लो होगा, है ना? यस यस, कितना फ्लो हो सकता है? यहाँ पे वैल्यू में आपको दिखा रहा है, जैसे कि आपको इधर पे दिख रहा है, इट इज इन मिली एम्पियर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक एक प्लॉट है, यहाँ पे दिखा रहा है आपको 12 मिली एम्पियर, एक एग्जाम्पल है। ओके, क्योंकि मैं ये पूछ रहा था, मतलब जब करंट 0 होगा तो कैसे फ्लो होगा, यही पूछ रहा था ना, इसीलिए। करंट 0 कहाँ से होगा, ये आप, मतलब VGS आपका सप्लाई वोल्ट 0 है ना, तो इसीलिए मैं पूछा। ठीक है मैं क्लियर करा देता हूँ आपका जो डाउट है। ये VGS किसका है, इनपुट का वोल्टेज है, ठीक है। ये इनपुट वोल्टेज कहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, गेट टर्मिनल और सोर्स टर्मिनल के बीच में, बराबर। और ये कौन सा वोल्टेज है, रिवर्स वोल्टेज है, रिवर्स बाइजिंग है, ये क्लियर है यहाँ तक। यस सर। ओके, अब क्या होता है, जैसे जैसे आप ये रिवर्स बाइजिंग को इंक्रीज करोगे, ये रिवर्स बाइजिंग यानी ये रिवर्स सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज करोगे, तो ये डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी। जब तक बढ़ी हुई नहीं है तो जब तक तो आपके पास ड्रेन करंट को फ्लो होने का रास्ता मिल रहा है ना।
बात जो समझ में ड्रेन आई? करने उसका सोर्स कैसा है, उसका किधर से सोर्स मिल यहाँ रहा से, यहाँ से है ये VDD, है? ये दिख रहा है VDD। आपको? हाँ ओके VDD, ओके, ये अब VDD ठीक दिख है, रहा है, ये हाँ बैटरी दिख रहा है आपको? हाँ यही हाँ तो मैं हाँ। बता रहा हूँ, ये VDD इसका सोर्स है। ये VDD सोर्स मतलब ड्रेन टर्मिनल को हम ने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किए है और सोर्स टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किए। तो इसका करंट जो फ्लो हो रहा है ना, वो यहाँ से फ्लो हो रहा है, ना कि इससे लेना देना है आपको। ओके सर, आप समझा। आप समझा क्या आपको? तो ये जो हाँ ड्रेन टर्मिनल से सोर्स टर्मिनल में जो करंट फ्लो हो रहा है, वो बिकॉज ऑफ दिस बैटरी VDD, वी हैव कनेक्टेड दिस बैटरी टू द ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल। तो बिकॉज ऑफ दिस अब यहाँ पे इसको खुला रास्ता मिल रहा है, तो पूरा खुला रास्ता मिल रहा है, तो आराम से आपका ड्रेन करंट फ्लो हो रहा है, कोई रुकावट नहीं है यहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे आप ये रिवर्स सप्लाई वोल्टेज इनपुट में बढ़ाओगे, गेट टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाओगे, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? उसका इफेक्ट ये होगा कि ये डिप्लेशन लेयर की विड्थ जो आजू बाजू है वो क्या होते जाएगी? बढ़ते जाएगी। तो उसके वजह से क्या होगा? ये जो ड्रेन करंट जो फुल फ्लो में फ्लो हो रहा था, उसको रुकावट मिलेगी ना, यस सर। वो क्या होते जाएगा? वो अपनी वैल्यू डिक्रीज करते जाएगा। तो मैं यही चीज आपको समझा रहा हूँ, यही तो चीज मैं क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो ड्रेन करंट का जो सोर्स है वो आउटपुट में VDD बैटरी की वजह से, लेकिन ये VDD ओके। बैटरी की वजह से जो ड्रेन करंट फ्लो हो रहा है, उसके फ्लो में रुकावट कब पैदा होगी? जब आप इनपुट का गेट टू सोर्स वोल्टेज ज्यादा रिवर्स करते जाओगे। तो जैसे जैसा ज्यादा रिवर्स करते जाओगे, वैसे वैसे उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ रही है, उसको रोक रही है फ्लो होने में। और एक टाइम ऐसा आएगा VGG यानी VGS वोल्टेज आप इतना इंक्रीज कर दोगे कि आपस में दोनों डिप्लेशन लेयर विद टच हो जाएगी। जब टच हो जाएगी तो फिर कहां से ड्रेन करंट फ्लो होगा? भले से आपका ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी जब दोनों को रोक देगा, जब दोनों टच हो जाएगा डिप्लेशन लेयर, ये हम लोग ने देखे थे यहाँ पे, ये हाँ हाँ वर्किंग सर, हम लोग कल ने देखे देखे थे थे। हम लोग ने। समझे? ये तो जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो इसकी वजह से फ्लो हो रहा है, VDS की वजह से फ्लो हो रहा है। लेकिन जब आप इनपुट का गेट टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, तो ये डिप्लेशन लेयर की विड्थ तो बढ़ती जाएगी ना। और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि दोनों आपस में टच हो जाएगी, तो फिर ये कहां से करंट फ्लो हो पाएगा? रास्ता बंद हो गया तो कहां से जाएगा आगे? यस सर। ठीक है, क्लियर? अभी यहाँ पे समझ में आया मैं क्या बोल रहा था? यस सर, मुझे वही प्रॉब्लम था, मतलब उसका सोर्स किधर है ये पूछना था सिर्फ। हाँ, तो ये आप क्लियर कर लो। ये इनपुट की तरफ जो है ये गेट टू सोर्स वोल्टेज जितना हाँ, ज्यादा रिवर्स करोगे, तो फिर वो वैल्यू में क्या होते जाएगा? आउटपुट के ड्रेन करंट में क्या होते जाएगा? डिक्रीज होते जाएगा। तो डिक्रीज हो इनिशियली, जाएगा। यस, इनिशियली जब VGS 0 है तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ सबसे कम है, और डिप्लेशन लेयर की विड्थ सबसे कम है तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ ड्रेन करंट फ्लो होगा। तो वो ये कर्व आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस कर्व इज रिप्रेजेंटिंग यू व्हाट? ये कर्व आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि इनिशियली जब आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 था, तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा आपका क्या फ्लो हो रहा था? ड्रेन करंट फ्लो हो रहा ड्रेन था। करंट। यहाँ पे आपको वैल्यू जो दिख रही है वो नियर अबाउट 12 मिली एम्पियर। ओके, फिर आपने यस क्या सर। किए? गेट टू सोर्स वोल्टेज रिवर्स सप्लाई वोल्टेज ज्यादा इंक्रीज किया। आप 0 से आपने -0.5 किए, -0.5 किए, -1 किए, -1.5 किए, -2 किए, -2.5 किए। यानी जितना ज्यादा आप रिवर्स सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज करोगे, तो उतना ज्यादा डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ेगी, और डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ेगी तो ड्रेन करंट क्या होगा? कम होगा। तो VGS 0 -0.5 पे 10 मिली एम्पियर शो हुआ है, -1 पे 8 मिली एम्पियर हुआ है, -1.5 पे 6 हुआ है, -2 पे आपका 4 हुआ है, -2.5 पे 2 हुआ है। तो ये क्या शो कर रहा है आपको? ये आपको क्या समझा रहा है? कि जैसे जैसे आप ये गेट टू सोर्स वोल्टेज, रिवर्स सप्लाई वोल्टेज इनपुट में बढ़ाते जाओगे, तो ये डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ते जाएगी, और वैसे वैसे ड्रेन करंट जो है वो स्लो डाउन होते जाएगा, उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? डिक्रीज होते जाएगी, बिकॉज सर ऑफ ये दिस ड्रेन करंट कांस्टेंट किस वोल्टेज से होती है? पिंच ऑफ वोल्टेज। वो यहाँ पे मार्क नहीं किया हुआ है, वो यही तो समझाना था मुझे। पिंच हाँ। ऑफ वोल्टेज जो हम लोग ने बताए थे ना, पिंच ऑफ वोल्टेज। यस तो सर। पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आ जाएगा कि क्या हो जाएगा? दोनों भी डिप्लेशन लेयर डिप्लेशन के बीच टच हो जाएगा आपके टच हो जाएगा, दोनों से। और फिर फर्दर फ्लो ऑफ ड्रेन करंट रुक जाएगा, और ड्रेन करंट विल रिमेन कांस्टेंट। तो देखो, हर वोल्टेज के लिए अलग अलग लेवल है। ये VGS 0 वोल्ट के लिए भी एक लिमिट होती है कि जहाँ पे ड्रेन करंट कांस्टेंट हो जाएगा। ये VGS -0.5 के लिए ये लेवल है, VGS -1 के लिए ये लेवल है। ठीक है? तो जितना ज्यादा आप VGS अप्लाई करते जाओगे, उतना ज्यादा वो डिप्लेशन लेयर जल्दी टाइम पे बंद हो जाएगा, रोक देगा उसको, ड्रेन करंट को। तो VGS की वैल्यू जब 0 वोल्ट थी, तो उतना ज्यादा टाइम था ड्रेन करंट के पास फ्लो होने के लिए, यानी डिप्लेशन लेयर अपने आप टच होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिला, तो ज्यादा ड्रेन करंट फ्लो हुआ। फिर एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा कि ड्रेन करंट विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज ऑफ डिप्लेशन लेयर। तो ये अलग अलग लेवल पे आपको दिखा रहा है
तो ये पॉइंट है आपका वीपी पिंच ऑफ वोल्टेज जो 2 वोल्ट पे दिख रहा है आपको। आर यू गेटिंग? तो VGS का वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे आपका ड्रेन करंट कांस्टेंट होता है, तो वो पिंच ऑफ वोल्टेज है। वो यहाँ पे मार्क किया हुआ नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे देखो ये डॉटेड लाइन से मार्क किया हुआ है। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बोलेंगे पिंच ऑफ वोल्टेज VP। ओके, और यहाँ पे फाइनली आपको एक दिख रहा होगा VGS -3 पे। VGS -3 पे क्या हो गया, अब फाइनली आपका ड्रेन करंट होना बंद हो गया, 0 हो गया। तो ये पॉइंट जो है ना VGS -3, जहाँ पे आपका ड्रेन करंट 0 हो गया, उस रीजन को बोलते हैं कट ऑफ रीजन। हम लोग ने वहां पे ट्रांजिस्टर में क्या देखे थे कि जो लीकेज करंट जो फ्लो होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, उस रीजन को क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीजन। यहाँ पे वैसा है नहीं, माइनॉरिटी चार्ज वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे, माइनॉरिटी चार्ज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली क्या बताया कि VGS की वो वैल्यू जहाँ पे ड्रेन करंट 0 हो जाए, तो दैट इज नोन एज व्हाट, पिंच ऑफ वोल्टेज, और उस रीजन को बोलते हैं कट ऑफ रीजन। तो इसलिए यहाँ पे नीचे मार्क किया हुआ आपको दिख रहा है कट ऑफ रीजन, जहाँ पे आपका ड्रेन करंट डायरेक्टली क्या हो गया, 0 वोल्ट पे हो गया। ओके, और जहां से आपका ड्रेन करंट कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट रीजन के बाद के रीजन को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन रीजन। यानी अब आपका ड्रेन करंट सैचुरेट हो चुका है, आप अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच चुका है, उसके आगे अब वैल्यू में नहीं जा सकता, तो उस रीजन को क्या बोला जाता है यहाँ पे, सैचुरेशन रीजन। ये जो मार्क किया हुआ रीजन दिख रहा है जहाँ पे ड्रेन करंट कांस्टेंट है, उस रीजन को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन रीजन। और एक रीजन आपको यहाँ पे नजर आएगा, जो नया नाम दिख रहा है आपको, कौन सा रीजन दिख रहा है, ओमिक रीजन। व्हाट डू यू मीन बाय ओमिक रीजन? ओमिक रीजन इसको क्यों बोलते हैं, व्हाई इट इज नोन एज ओमिक रीजन? बिकॉज आप ध्यान से देखोगे, ये जितना भी रीजन है, ये जो इनसाइड का जो ये पार्ट का जो रीजन है, ये रीजन में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो, वैसे वैसे क्या हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लीनियर अमाउंट में दिख रहा है आपको। जब ये आउटपुट का ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, तो आउटपुट करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, इट इज फॉलोइंग विच लॉ, ओम्स लॉ। V इज इक्वल्स टू I इंटू आर, आपको पता है ना, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू आर, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर रीजन है, यहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, इसलिए इस रीजन को क्या बोलते हैं, ओमिक रीजन, वेयर आउटपुट वोल्टेज इज इंक्रीजिंग प्रोपोर्शनली विथ आउटपुट करंट। यानी आउटपुट का करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है प्रोपोर्शनल में किसके, आउटपुट वोल्टेज के। तो दैट्स व्हाई इट इज फॉलोइंग ओम्स लॉ। तो दिस रीजन इज मार्क एज ओमिक रीजन। बाकी फिर इसके बाद जो ड्रेन करंट कांस्टेंट हो जाता है, तो उस रीजन को बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। और जहां पे ड्रेन करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, वो VGS का वोल्टेज जो ड्रेन करंट को 0 कर दे, उस रीजन को बोलते हैं कट ऑफ रीजन। तो इस कैरेक्टरिस्टिक में भी 3 रीजन है। कौन कौन से रीजन है, एक कट ऑफ रीजन है, एक सैचुरेशन रीजन है, एक ओमिक रीजन है। और मेन बात क्या समझ में आ रही है आप लोग को इस ग्राफ में, मेन बात आप लोग को ये क्लियर हो रही है कि ये जो आउटपुट का जो ड्रेन करंट है वो किसकी वजह से कंट्रोल हो रहा है, बिकॉज ऑफ इनपुट VGS, गेट टू सोर्स वोल्टेज। अब जैसा जैसा गेट टू सोर्स वोल्टेज आप क्या करोगे, रिवर्स सप्लाई वोल्टेज बढ़ाओगे, तो ड्रेन करंट की वैल्यू क्या होते जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी, है ना। क्यों डिक्रीज हो रही है, क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब वो VGS 0 था तो सबसे ज्यादा ड्रेन करंट फ्लो हो रहा था, क्योंकि इस टाइम पे चैनल की विड्थ सबसे ज्यादा थी। लेकिन आप जैसे जैसे रिवर्स सप्लाई वोल्टेज बढ़ाओगे, तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ेगी, ड्रेन करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आई होप आप लोग को ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी। मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी बताता हूँ आपको, नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में। ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ग्राफ है, इज अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन VDS वर्सेस ID। तो सबसे पहले तो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो ग्राफ प्लॉट किया हुआ है किसके किसके बीच में, आउटपुट वोल्टेज VDS वर्सेस आउटपुट करंट, ड्रेन करंट ID। VDS जो है वो वोल्टेज में रहेगा, ड्रेन करंट जो आउटपुट करंट है वो किस में रहेगा, मिली एम्पियर्स में रहेगा। ओके, फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है, कीपिंग VGS कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनपुट का VGS कांस्टेंट रख के जो ग्राफ प्लॉट होता है आउटपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट के बीच में, उस कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ JFET। तो यहाँ पे देखो हर वैल्यू में देखो VGS कांस्टेंट रखा गया है, कभी VGS 0 रखा गया है, कभी VGS बढ़ा के -0.5 रखा गया है। तो आप जैसा ऐसा VGS की वैल्यू को रख रहे हो, बढ़ा रहे हो, कांस्टेंट रख रहे हो, तो वैसा वैसा ग्राफ के बिहेवियर में चेंजेस ऑब्जर्व हो रहा है। इट हैज 3 रीजन्स। तो इस ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक को 3 रीजन्स है। सबसे पहला रीजन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ओमिक रीजन। तो व्हाई इट इज नोन एज ओमिक रीजन, इन ओमिक रीजन ड्रेन करंट वेरीज विद द चेंज इन VDS। ये दो चीज हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओमिक रीजन में क्या होता है कि ड्रेन करंट की जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो रही है किसके हिसाब से,
आउटपुट ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के हिसाब से। तो जैसा जैसा ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज आप इंक्रीज करते जाओगे वैसा वैसा क्या होगा, ड्रेन करंट भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। बात बराबर है। जब VGS की वैल्यू 0 रहेगी तो उस टाइम पे ज्यादा ड्रेन करंट फ्लो होगा। जब VGS की वैल्यू जैसा रिवर्स सप्लाई वोल्टेज बढ़ाओगे तो वैसा ड्रेन करंट की वैल्यू कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो इनिशियली सबसे ज्यादा ड्रेन करंट कब फ्लो होगा, जब आप VGS को 0 वोल्ट पे रखोगे। तो जब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज आप इंक्रीज करोगे तो यू विल गेट मैक्सिमम ड्रेन करंट मिलेगा आपको। तो ओमिक रीजन में पहले तो ये समझाया हुआ है कि क्या बताया इसने कि जो चेंज इन VDS करके जो आपका ड्रेन करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। इट इज ऑल्सो फॉलोइंग ओम्स लॉ, देयरफॉर इट इज नोन एज व्हाट, ओमिक रीजन। तो ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। V is equals to I into R, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट। तो इट इज फॉलोइंग ओम्स लॉ, दैट्स व्हाई दिस रीजन इज नोन एज ओमिक रीजन। सेकंड रीजन जो मार्क किया हुआ है सैचुरेशन रीजन, मतलब क्या, आफ्टर VP क्या आपका पिंच ऑफ वोल्टेज। तो आफ्टर VP ड्रेन करंट गेट सैचुरेटेड, दिस मीन्स इवन इफ VDS इज इंक्रीज ID रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपको जो मार्क किया हुआ दिख रहा है, ये जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 2 वोल्ट, ये आपका 2 वोल्ट पे जो मार्क किया हुआ पॉइंट दिख रहा है, ये आपका VP। आप लोग इधर पे लिख लेना, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे आप लोग लिख लेना VP, पिंच ऑफ वोल्टेज। तो पिंच ऑफ वोल्टेज वो वोल्टेज है जहां पे आपका ड्रेन करंट सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेट का मतलब क्या होता है, इवन इफ यू इंक्रीज द आउटपुट वोल्टेज VDS, आप VDS को इंक्रीज भी करोगे फिर भी आपका ड्रेन करंट कांस्टेंट रहेगा, ड्रेन करंट इंक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसको किसने रोक दिया है, डिप्लेशन लेयर की विड्थ ने रोक दिया है। अब आप यहाँ से VDS सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज भी करोगे तो भी आपका ड्रेन करंट नहीं बढ़ेगा, उसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, बिकॉज डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो उसने उसको रुकावट में पैदा कर दी, उसने उसको रोक दिया है फर्दर फ्लो होने के लिए। तो ये रीजन को सैचुरेशन रीजन बोलते हैं, जहाँ पे ड्रेन करंट आपका सैचुरेट हो जाता है मैक्सिमम वैल्यू पे। अब उसके बाद फर्दर उसका इंक्रीज नहीं हो सकता। सो ड्रेन करंट विल रिमेन कांस्टेंट इवन इफ यू इंक्रीज द ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। जब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाओगे भी तो भी ड्रेन करंट आपका बढ़ेगा नहीं, इट विल रिमेन कांस्टेंट, बिकॉज डिप्लेशन लेयर ने क्या किया, उसको रोक दिया है, उसको क्या कर दिया, फर्दर फ्लो होने के लिए रोक दिया हुआ है। फिर लास्ट रीजन आपको क्या नजर आएगा, कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन क्या है, व्हेन pinch of voltage is applied across gate to source volt terminal, there is no flow of drain current, this region is known as cut off region। तो जब आप गेट टू सोर्स वोल्टेज को पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर कर दोगे तो पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर करने से क्या होगा, ड्रेन करंट फर्दर फ्लो होना रुक जाएगा, ड्रेन करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और उस रीजन को क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीजन। तो यहाँ पे जो मार्क किया हुआ रीजन है वेयर ड्रेन करंट वैल्यू 0, तो VGS की वो वैल्यू जहाँ पे आपने ड्रेन करंट को 0 कर दिया है उस रीजन को बोलते हैं कट ऑफ रीजन। तो ये नीचे जो मार्क किया हुआ है कट ऑफ रीजन। सो देयर आर 3 रीजन इन दिस कैरेक्टरिस्टिक, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन एंड ओमिक रीजन। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से आप समझा सकते हो, उसको एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि ये जो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक है वो 3 रीजन में डिवाइड हुआ है, ओमिक रीजन में है, सैचुरेशन रीजन में है, कट ऑफ रीजन में। तो वो चीज़ आप एक्सप्लेन कर सकते हो इधर पे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें? No, नो सर। ठीक है, तो ये था आपका ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेफेट भी बोला जाता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज गेट कैरेक्टरिस्टिक। तो गेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेफेट भी है। तो गेट कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके बीच में प्लॉट होगा, इट इज गोइंग टू बी प्लॉट बिटवीन इनपुट वोल्टेज VGS वर्सेस आउटपुट ड्रेन करंट। यानी वो ग्राफ जो इनपुट वोल्टेज VGS वर्सेस आउटपुट ड्रेन करंट के बीच में प्लॉट होता है उस कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं गेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेफेट। ठीक है, क्योंकि ये इनपुट वोल्टेज VGS वर्सेस ID के बीच में प्लॉट किया हुआ है। वो कौन से बीच में प्लॉट किया हुआ था, आउटपुट वोल्टेज VDS वर्सेस आउटपुट करंट के बीच में प्लॉट किया हुआ था, इसलिए उसको ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज ड्रेन था, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज गेट है, इसलिए इसको बोलते हैं गेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेफेट। तो जैसा कि आपको नजर आ रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में VGS है और वर्टिकल एक्सिस में अपना ड्रेन करंट है। ना ये ग्राफ ऐसा क्यों बनाया हुआ है, इस तरफ क्यों बनाया हुआ है, वाई, ये इसको इस तरफ क्यों नहीं बनाया हम लोग ने, पॉजिटिव साइड पे क्यों नहीं बनाया, इसको ऐसा नेगेटिव साइड पे क्यों बनाया, कौन बताएगा मुझे? ये VGS की वैल्यू पीछे क्यों रखे, आगे क्यों नहीं लिया हम लोग ने? क्योंकि इनवर्सली यस, रिवर्स है, रिवर्स। तो गेट वोल्टेज क्या है, रिवर्स सप्लाई वोल्टेज है ना, रिवर्स वोल्टेज है।
रिवर्स बाइजिंग अप्लाई करते हैं ना, तो रिवर्स बाइजिंग के हिसाब से वो रिवर्स यानी नेगेटिव वोल्टेज बताया हुआ है, शो किया हुआ है 0, -0.5, -1, -1.5, -2. So VGS voltage is reverse voltage, so that's why it is shown over here with negative value. So on the left side, the value has taken on the left side. So 0, -0.5, -1, -1.5, -2 ये आपका VGS का वैल्यू है, VGS का वोल्टेज है। और वर्टिकल एक्सिस तो आपका ड्रेन करंट है जो आपको पता है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज हम लोग को समझना है, प्लीज पे अटेंशन प्रॉपरली। दो ही चीज हम लोग को समझ में आना, दो ही चीज हम लोग को इसमें समझना है। जब आप VGS की वैल्यू 0 रखोगे तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा ड्रेन करंट फ्लो होगा, बराबर। जब आप VGS की वैल्यू 0 रखोगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे VGS 0 पे सबसे ज्यादा ड्रेन करंट फ्लो होगा। और वो जो मैक्सिमम ड्रेन करंट फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको किससे डिनोट करते हैं, IDSS। ये हम लोग ने कर चुके थे, मैक्सिमम ड्रेन टू सोर्स करंट। तो मैक्सिमम ड्रेन टू सोर्स करंट इज डिनोटेड बाय IDSS। तो जब आप VGS की वैल्यू 0 रखोगे, VGS 0 रहेगा, रिवर्स सप्लाई वोल्टेज सबसे कम होगा, तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम ड्रेन करंट फ्लो होगा। अब जैसे जैसे आप VGS की वैल्यू को इंक्रीज करते जाओगे तो ड्रेन करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होते जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी। तो जिस तरीके से -0.5 पे आपको फॉर एग्जांपल 6 मिली एम्पियर मिल रहा है, -1 पे आपको फॉर एग्जांपल 2.5 मिली एम्पियर मिल रहा है, -1.5 पे फॉर एग्जांपल आपको 1 मिली एम्पियर मिल रहा है, और फाइनली -2 पे जिसको कौन सा वोल्टेज बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज, जहां पे डायरेक्टली आपका ड्रेन करंट क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी 0 हो जाएगी। सो द वैल्यू ऑफ VGS which is causing your drain current value to 0, so that particular point, that particular voltage is known as what, pinch off voltage. तो pinch off voltage वो वोल्टेज है जो डायरेक्टली आपके ड्रेन करंट को क्या करेगा, 0 कर देगा, बिकॉज डिप्लेशन लेयर अब क्या हो गई, पूरी कंप्लीटली क्या तरीके से क्या हो गई, टच हो गई है। तो फर्दर ड्रेन करंट का फ्लो होना क्या हो गया, रुक गया, बंद हो गया। तो यहाँ पे आपको वो पॉइंट कौन सा मार्क किया हुआ है जहां पे आपका ड्रेन करंट की वैल्यू 0 होती है, तो वो पॉइंट कौन सा है, VGS का वो वोल्टेज जो ड्रेन करंट को 0 कर दे, तो उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज। और VGS जब 0 रहेगा तो उस टाइम पे मैक्सिमम ड्रेन करंट फ्लो होगा, तो उस मैक्सिमम ड्रेन करंट को डिनोट करते हैं हम लोग किससे, IDSS से। तो ये IDSS क्या, आपका मैक्सिमम ड्रेन टू सोर्स करंट, और ये जो आपका VGS पे जहाँ पे ड्रेन करंट 0 हो रहा है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज, VP बोलते हैं। तो ये आपके जो ग्राफ थी इसको बोलते हैं गेट कैरेक्टरिस्टिक। तो गेट कैरेक्टरिस्टिक में क्या लिखा हुआ है, गेट कैरेक्टरिस्टिक इज अ ग्राफ विच इज प्लॉटेड बिटवीन VGS वर्सेस ID एट कांस्टेंट VDS। तो ये जो ग्राफ है वो किसके बीच में प्लॉट किया गया है, इनपुट वोल्टेज VGS वर्सेस आउटपुट करंट, ड्रेन करंट एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज VDS, यानी VDS को कांस्टेंट रखे। VDS को अब छेड़ना नहीं है, VDS को बढ़ाना नहीं है, VDS को कांस्टेंट रखो। तो VDS को कांस्टेंट रखेंगे तो खुद ब खुद हम लोग को मालूम पड़ेगा कब मैक्सिमम ड्रेन करंट फ्लो हो रहा है और कब ड्रेन करंट 0 हो जाएगा। तो ड्रेन करंट कब 0 होगा, जब जाहिर सी बात है डिप्लेशन लेयर आपस में टच कर देंगे तो ड्रेन करंट तो वैल्यू 0 ही हो जाएगी, वो कहाँ से फ्लो होगा, फर्दर फ्लो होगा ही नहीं। तो ये चीज थी आपकी इधर पे लिखा हुआ, और यहाँ पे वही सेकंड पॉइंट में वही लिखा हुआ है, व्हेन VGS इक्वल टू 0, जब VGS आपका 0 होगा तो मैक्सिमम ड्रेन करंट विल फ्लो फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल। तो जब VGS की वैल्यू 0 होगी तो मैक्सिमम ड्रेन करंट विल फ्लो फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल, और जब VGS इज इंक्रीज ID स्टार्ट रिड्यूसिंग। और जैसे जैसे आप VGS को बढ़ाते जाओगे, VGS की वैल्यू को इंक्रीज करते जाओगे, तो ड्रेन करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होता चालू हो जाएगी। तो VGS को जैसे जैसे हम लोग बढ़ा रहे हैं तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, ड्रेन करंट की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ID विल बिकम 0, और ID जो है ड्रेन करंट 0 हो जाएगा, एंड दिस वोल्टेज इज नोन एज व्हाट, पिंच ऑफ वोल्टेज। तो ये वोल्टेज को क्या कहते हैं हम लोग, पिंच ऑफ वोल्टेज, जो क्या करेगा, आपके ड्रेन करंट को 0 कर देगा, बिकॉज डिप्लेशन लेयर आपस में टच हो गए। आई होप आप लोगों को समझ में आया ये गेट कैरेक्टरिस्टिक। यस सर। इसमें दो ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क की हुई, एक तो मैक्सिमम ड्रेन टू सोर्स करंट IDSS, और यहाँ पे जो मार्क किया हुआ VP, पिंच ऑफ वोल्टेज। तो पिंच ऑफ वोल्टेज पे क्या हो रहा है, ड्रेन करंट 0 हो रहा है, और IDSS कब मिलेगा, जब VGS 0 पे रहेगा। तो जब VGS 0 होगा तो ड्रेन करंट मैक्सिमम मिलेगा, और जब आपका VGS यहाँ पे पिंच ऑफ वोल्टेज होगा तो ड्रेन करंट 0 होगा। सर हाँ बोलिए बोलिए, रिवर्स करंट आ रहा है इसलिए माइनस है, क्या बोल रहे हैं आप, माइनस साइन।
माइनस साइन किस में? वहां पर नीचे हॉरिजॉन्टल में नेगेटिव में है ना, हाँ हाँ, क्योंकि वो रिवर्स करंट फ्लो हो रहा है। रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज, गेट टू सोर्स वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज, ओके सर। दिस इज VGS है, ये हॉरिजॉन्टल में VGS है, गेट टू सोर्स वोल्टेज इज ऑलवेज रिवर्स बाइस, तो रिवर्स बाइस होने की वजह से वो रिवर्स वोल्टेज शो हुआ है, -0.5 -1, ये करंट नहीं है, ये वोल्टेज है। इज दैट क्लियर? यस सर, यस। ये वोल्टेज की वैल्यू है, VGS की वैल्यू है, और ये वर्टिकल में करंट की वैल्यू है, ID की वैल्यू मिली एम्पियर में। क्लियर है? यस सर, थैंक यस सर। Oh. So finally we are concluding ये JFET का टॉपिक, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ JFET। तो JFET का एडवांटेज ये कि इसका वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस। हाई इनपुट इम्पीडेंस क्यों बोलो? क्योंकि इनपुट को आप क्या करते हो, रिवर्स बायस करते हो ना, तो रिवर्स बायस करने में सबसे ज़्यादा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, तो इनपुट इम्पीडेंस इसका क्या है, सबसे ज़्यादा है, सबसे हाई है। तो इनपुट इम्पीडेंस इज वेरी हाई बिकॉज ऑलवेज JFET में जो इनपुट जंक्शन है वो क्या होता है, हमेशा रिवर्स बायस होता है, गेट टू सोर्स जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स बायस, तो इसके लिए इसका इनपुट इम्पीडेंस सबसे हाई है। और इसको कोई ना कोई एडवांटेज पर्सपेक्टिव से ही लिया गया है कि जहाँ पे आपका कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई चीज़ अचानक से आपकी चीज़ को, बिहेवियर को चेंज कर देती है, तो इसका इम्पीडेंस इतना हाई है कि जो इफेक्ट है वो इतना इफेक्ट नहीं दिख जाएगा। इनपुट में कुछ भी अचानक से फ्लक्चुएशंस हुए या सर्जेस हुए तो वो चीज़ को ये इतना दिखाएगा नहीं, करेगा नहीं, क्योंकि इसका इनपुट इम्पीडेंस इतना हाई है, तो उसका इफेक्ट वहाँ पे नहीं दिख के आएगा आपको। दूसरा यहाँ पे सेकेंड एडवांटेज यहाँ पे ये दिया हुआ है, इट इज़ हैविंग बेटर थर्मल स्टेबिलिटी। बेटर थर्मल स्टेबिलिटी क्यों? क्योंकि जो थर्मल रनअवे का जो कॉन्सेप्ट था वो आपका BJT में था, वो किस वजह से था, बिकॉज ऑफ विच थर्मल रनअवे का जो कॉन्सेप्ट था BJT में वो किस वजह से था, एक्चुअल में रीजन क्या था उसका, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, फिर कौन सी चीज़ बढ़ती है, टेल मी। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, कौन सा करंट बढ़ता है, पढ़ चुके हम लोग ने। थर्मल रनअवे में टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज विच करंट विल इंक्रीज, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से कौन सा करंट होता है, लीकेज करंट। लीकेज करंट। तो बात समझ में आई? तो वहां पे है लीकेज करंट जो होता था वो किसकी वजह से होता था, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। तो वो क्या होगा, बढ़ेगा, फिर वो बढ़ेगा तो टोटल आउटपुट के करंट को बढ़ाएगा, और फिर वो आउटपुट का करंट बढ़ेगा तो पावर डिसिपेशन बढ़ेगा, इस तरीके से और ज्यादा हीट होगा। तो यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी अच्छी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लीकेज करंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना JFET में। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लीकेज करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से कोई लीकेज करंट का फ्लो नहीं है, दैट्स व्हाई, तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है, थर्मल स्टेबिलिटी इसकी अच्छी है। ओके, तो यानी इसकी टेम्परेचर में वर्क करने की कैपेबिलिटी अच्छी है JFET की। तो ये दो एडवांटेज यहाँ पे दिया हुआ है, वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस एंड बेटर थर्मल स्टेबिलिटी। डिसएडवांटेज में ये दिया हुआ है, गेन इज स्मॉलर कंपेयर टू BJT। एक ये डिसएडवांटेज है यहाँ पे JFET में, इसका गेन नहीं है, बहुत कम है, बिकॉज BJT का गेन जो होता था वो बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए उसको मेनली पर्पस यूज़ करते हैं हम लोग एम्पलीफिकेशन के लिए। बीटा जो गेन था ना, वो गेन क्या करता था, आपके इनपुट के आउटपुट को बढ़ा देता था। यहाँ पे जब ऑलरेडी आपने इनपुट इम्पिडेंस कम रखे हो तो कहाँ से फिर आपका इतना गेन इतना अच्छा होगा जो आपको एम्पलीफाई करके मिलेगा। तो JFET में जो डिसएडवांटेज है एज कम्पेयर टू BJT के कंपेयर में, हाँ BJT के कंपेयर में गेन होता है, ऐसा नहीं होता कि गेन नहीं होता है, गेन होता है, लेकिन BJT के कंपैरिजन में इसका गेन जो है बहुत कम है, बहुत स्मॉलर है। वो एम्पलीफिकेशन की बात नजर नहीं आएगी आपको जो BJT में एम्पलीफिकेशन की बात नजर आती है। तो ये डिसएडवांटेज है। बाकी एडवांटेज आपका क्या है, एडवांटेज इसका इनपुट इम्पिडेंस हाई है और बेहतर थर्मल स्टेबिलिटी है, यानी थर्मल में टेम्परेचर वगैरह में अच्छा वर्क करेगा। ये टेम्परेचर की वजह से इसका बिहेवियर चेंज नहीं होगा, उसको बोलते हैं बेटर थर्मल स्टेबिलिटी। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज होता है, एप्लीकेशन में यूज होता है, इट कैन बी यूज एज एम्पलीफायर, कैन बी यूज एज एम्पलीफायर, एम्पलीफायर के जैसा यूज कर सकते हो, बस ये कि गेन उतना अच्छा नहीं है कंपेयर टू BJT। जब एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करना होता है ज़्यादा तो हम लोग वहाँ पे प्रीफर करते हैं BJT को, लेकिन जब अगर टेम्परेचर वगैरह स्टेबिलिटी होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, तो वहाँ पे फिर JFET को प्रीफर करते हैं। इट कैन बी यूज एज अ स्विच,
ये स्विचिंग के जैसा यूज किया जा सकता है, जैसे बीजेटी भी एज अ स्विच जैसा यूज होता था, वैसे आप जेफेट को भी एज अ स्विच यूज करोगे। और बल्कि ये जो आपका जेफेट है वो हाई फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा ऑपरेशन वर्क करता है एज अ स्विच के लिए। तो जब आपकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेशन करना हो ना, तो उस ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे बल्कि ज्यादा ये एज अ स्विच के जैसा यूज होता है। आप पढ़ोगे आगे चल के, मॉसफेट का भी टॉपिक है, तो मॉसफेट में भी हम लोग क्लियर करेंगे कि वो सब में क्या होता है। तो ये जो जेफेट वगैरह है एज अ स्विच ज्यादातर यूज होता है जब हाई फ्रीक्वेंसी वगैरह ऑपरेशन करना हो, तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन में एज अ स्विच के जैसा काम होता है जेफेट। और थर्ड एप्लीकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इट कैन बी यूज इन ऑसिलेटर सर्किट। तो ये ऑसिलेटर सर्किट क्या होती है, ये फर्दर आपको आगे के सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ पे समझ में आएगा व्हाट इज ऑसिलेटर। तो वहाँ पे भी ये यूज होता है। तो ये सब बीजेटी जेफेट ये सब वहाँ पे यूज होते हैं। तो ये सब एप्लीकेशन है कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। So finally, I am going to end this topic of JFET with the main and important topic of comparison between BJT and FET। ये बहुत important topic है। BJT और FET के बीच में comparison करना, ये आपके बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ है, comparison between BJT and FET। तो मैं आज ये अपने लेक्चर को एंड करूंगा विद द हेल्प ऑफ कंपेयरिंग बिटवीन बीजेटी एंड एफईटी। तो अब हमने दोनों चीज पढ़ चुके, बीजेटी को भी और एफईटी को भी। तो फाइनली वी आर गोइंग टू कंपेयर बिटवीन दिस। तो आपको पैरामीटर नजर आ रहा होगा और कंपैरिजन का पॉइंट नजर आ रहा होगा। तो पैरामीटर में सबसे पहले आपको दिख रहा है सिंबल। तो आपने सिंबल ड्रॉ किया बीजेटी का, तो यहाँ पे जो मैंने सिंबल ड्रॉ किया हुआ है बीजेटी का, इट इज ऑफ एनपीएन टाइप। आपको दिख रहा है 3 टर्मिनल है, बेस, कलेक्टर, इमीटर। और इमीटर टर्मिनल में जो एरो मार्क किया हुआ दिखाई दे रहा है, तो इट इज रिप्रेजेंटिंग विच टाइप ऑफ बीजेटी, एनपीएन टाइप ऑफ बीजेटी। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे जो सिंबल में यूज किया वो कौन सा सिंबल ड्रॉ किया हुआ है, एन चैनल जेफेट। तो एन चैनल जेफेट में जो 3 टर्मिनल यूज होती है, गेट एंड ड्रेन एंड सोर्स, और गेट टर्मिनल से आपका करंट फ्लो जा रहा है, तो इट इज रिप्रेजेंटिंग एन चैनल जेफेट। तो ये आपको पहला पॉइंट आपने कंपैरिजन में सिंबल लेके आ गए, चलेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपने कंपैरिजन में लेके आए है कंट्रोलिंग एलिमेंट। व्हाट डू मीन बाय कंट्रोलिंग एलिमेंट? कंट्रोलिंग एलिमेंट मतलब कौन सा पैरामीटर आपका कंट्रोल कर रहा है आउटपुट के करंट को। तो बीजेटी में कौन सी चीज करंट कंट्रोल करती थी आउटपुट करंट को, तो इनपुट का बेस करंट। तो दैट्स वाई यहाँ पे कंट्रोलिंग एलिमेंट क्या है, करंट है, बिकॉज बीजेटी इज करंट कंट्रोल डिवाइस, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, करंट कंट्रोल डिवाइस, बिकॉज इनपुट बेस करंट इज कंट्रोलिंग आउटपुट कलेक्टर करंट। तो इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, करंट कंट्रोलिंग डिवाइस। और एफईटी में हम लोग ने अभी ऑब्जर्व किए, इट इज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, बिकॉज इनपुट का गेट टू सोर्स वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है आउटपुट के ड्रेन करंट को। तो कंट्रोलिंग एलिमेंट यहाँ पे करंट है, कंट्रोलिंग एलिमेंट यहाँ पे वोल्टेज है। पोलैरिटी यानी कैसा पोलर, बाइपोलर है, यूनिपोलर है। तो एफईटी यूनिपोलर है और बीजेटी आपका बाइपोलर है। बाइपोलर का मतलब क्या होता है कि करंट कंडक्शन जो होता है वो दोनों तरीके से होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से भी होता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से भी होता है, इसलिए बीजेटी को बाइपोलर बोला जाता है। और एफईटी को यूनिपोलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो करंट कंडक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से ही होता है, नॉट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। कोई लीकेज करंट का कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे जो आपको यूनिपोलर जो रिप्रेजेंट हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस करंट कंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर। अब वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर आइदर आपका इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे होल्स हो, लेकिन मेजोरिटी की वजह से ही करंट फ्लो होगा। यहाँ पे आपका बाइपोलर इसलिए बोला जाता है बिकॉज करंट कंडक्शन दोनों चार्ज कैरियर की वजह से हो सकता है, मेजोरिटी की वजह से भी एज वेल एज माइनॉरिटी की वजह से भी। तो पोलैरिटी इसकी बाइपोलर है, इसकी यूनिपोलर है। अब बात करते हैं इनपुट इम्पीडेंस। तो इनपुट इम्पीडेंस लो किसका है, बीजेटी का, बिकॉज आप बीजेटी को इनपुट को क्या करते हो, हमेशा फॉरवर्ड बाइस करते हो ना। एज अ एम्पलीफायर यूज करने के लिए हम लोग को बीजेटी में इनपुट जंक्शन को हमेशा क्या करना पड़ता है, फॉरवर्ड बाइस। तो फॉरवर्ड बाइस करोगे तो इम्पीडेंस उसका क्या रहेगा, कम रहेगा। और यहाँ पे इनपुट जंक्शन को हमेशा क्या करना पड़ता है, रिवर्स बाइस। तो रिवर्स बाइस करोगे तो इनपुट इम्पीडेंस इसका हमेशा क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो इनपुट इम्पीडेंस ऑफ बीजेटी इज लो एंड इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एफईटी इज हाई। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका आउटपुट इम्पीडेंस। तो आउटपुट इम्पीडेंस इसका हाई क्यों है, बिकॉज आउटपुट जंक्शन हमेशा रिवर्स बाइस होता है बीजेटी में। बीजेटी में आउटपुट जंक्शन हमेशा क्या होता है, रिवर्स बाइस। तो रिवर्स बाइस करने की वजह से ये क्या होगा, हमेशा आपका आउटपुट इम्पीडेंस हाई होगा। और यहाँ पे आउटपुट इम्पीडेंस लो क्यों है, बिकॉज वीडीएस ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस ना। ड्रेन वाला हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल पे रहेगा, सोर्स वाला हमेशा नेगेटिव पे रहेगा, तो वो हमेशा फॉरवर्ड बाइस है। तो इसके लिए आउटपुट इम्पीडेंस यहाँ पे क्या है, लो है। तो देखो मैं सब चीज आपको क्लियर भी कर रहा हूँ, इनपुट इम्पीडेंस लो क्यों है, हाई क्यों है,
आउटपुट इम्पिडेंस हाई क्यों है, लो क्यों है, तो जैसा हमने पढ़े हैं उसके हिसाब से ये इनपुट इम्पिडेंस हाई और लो है। गेन 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 की बात आ गई तो बीजीटी में गेन जो है वो क्या होता है, हाई होता है, बिकॉज ऑफ दैट बीटा, बीटा की वजह से आपका करंट एम्पलीफिकेशन ज़्यादा होता है। तो बीटा जो गेन है इट इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू एफईटी गेन। तो एफईटी का गेन कंपेयर टू बीजेटी कम होता है, तो इसके लिए बीजेटी को एम्पलीफायर के लिए ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू एफईटी। तो जब एम्पलीफिकेशन की बात होती है तो वी आर प्रीफरिंग बीजेटी, वाई, बिकॉज बीजेटी का गेन ज़्यादा होता है, हाई होता है एज कम्पेयर टू एफईटी। लास्ट पॉइंट जो कंपैरिजन का है, थर्मल रनअवे। तो थर्मल रनअवे किस में आकर होता है, बीजेटी में, बिकॉज वो किसकी वजह से होता है, लीकेज करंट होने की वजह से होता है, इंक्रीजिंग लीकेज करंट की वजह से। तो थर्मल रनअवे किस में आकर होता है, बीजेटी में। थर्मल रनअवे डो नॉट अकर्स इन एफईटी बिकॉज लीकेज करंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसमें, लीकेज करंट फ्लो ही नहीं होता है, तो देयर इज नो थर्मल रनअवे अकर्स इन एफईटी। तो थर्मल रनअवे अकर्स इन बीजेटी, थर्मल रनअवे के डोंट अकर्स इन एफईटी। So is that clear, all of you? Comparison between BJT and FET. यस सर। मैंने वही पॉइंट्स का कंपैरिजन किया है, जो मैंने पॉइंट्स आपको समझाया है, वर्किंग बताया है, उसी वर्किंग के बेसिस पे ही मैंने ये सारे पॉइंट्स को लेके आया। और बहुत आसान कंपैरिजन के पैरामीटर्स है जो आपको आसानी से मालूम हो जाएगा और यू कैन डू कंपैरिजन इजीली। तो ये कंपैरिजन वही पॉइंट्स के बीच में, वही पैरामीटर्स के बीच में लेके आए जो हम लोग ने वर्किंग पढ़े दोनों की, बीजेटी और एफईटी की। तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग ओनली, बिहेवियर ओनली, ये पैरामीटर्स के पॉइंट और इनके बीच में हमने कंपैरिजन किए। सो दैट्स ऑल फॉर योर बीजेटी सॉरी एफईटी टॉपिक। तो यहाँ तक था आपका पूरा एफईटी का टॉपिक। तो मैंने यहाँ पे एफईटी के टॉपिक को पूरा कंप्लीट किया है। तो एफईटी का हम लोग ने कंस्ट्रक्शन देखे, वर्किंग देखे और उसका कैरेक्टरिस्टिक देखे, और इन दी एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन, एंड फाइनली कंपेयरिंग बिटवीन बीजेटी एंड एफईटी। अब इसके बाद जो टॉपिक होगा वो आपका कौन सा होगा, मॉसफेट का टॉपिक होगा। तो यहाँ पे आपका एफईटी का टॉपिक खत्म होता है। एफईटी के पॉइंट को हम लोग ने यहाँ पे अच्छी तरीके से कंप्लीट किया, अंडरस्टैंड किए। द नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मॉसफेट। फिर मॉसफेट का टाइप्स देखना है, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग, फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक, कैसा कैरेक्टरिस्टिक होता है, सिंबल। तो नेक्स्ट जो स्टडी होगी इस चैप्टर की वो किससे रिलेटेड होगी, मॉसफेट से रिलेटेड होगी। यहाँ तक कि आपकी जो स्टडी थी वो एफईटी से रिलेटेड था, सॉरी जेफेट से रिलेटेड था, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से रिलेटेड था। तो यहाँ तक का किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, कुछ डाउट है क्या, किसी को कुछ नहीं समझा तो पूछ नो सकते हैं। सर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। यहाँ पे मैं आज के लेक्चर को एंड करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। Thank you all of you for joining, listening and understanding. Stay safe, stay at home. Thank you very much.